well-being. Uh, yes, and Pink Mind basically is a venture for emotional well-being, and we offer 4 verticals. हम 4 verticals में काम करते हैं, जिसमें एक इमोशनल काउंसलिंग इंडिविजुअल दिया जाता है, पर्सनल काउंसलिंग, हमारे लाइफ में बहुत सारे इश्यूज होते हैं या कभी हमें ग्रोथ चाहिए होती है, और टेक्निकल इमोशनल सपोर्ट हम लेके बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ को आसान कर सकते हैं. सो दैट्स वी ऑफर एज अ इंडिविजुअल काउंसलिंग. दूसरा वर्टिकल होता है ग्रुप सेशन. उसके अंतर्गत आज हमारा ये सेशन है और इसके बारे में हमें और जानकारी भी मिलेगी. उसके अलावा हम कॉर्पोरेट्स और इंस्टीट्यूशन को इमोशनल वेलबींग रिलेटेड सेशंस ऑफर करते हैं, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस, इमोशन मैनेजमेंट, रेजिलियंस, ये सारे टॉपिक हो गए. और लास्ट वर्टिकल जो होता है दैट इज साइको एजुकेशन, यानी साइकोलॉजी. ये विषय जो है हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, बट इतने बड़े पैमाने पे उसका अवेयरनेस नहीं है. तो उसके बारे में हम एजुकेशन के through education we educate people in simple language what is psychological concept and how that we can implement in our life and we can make our life better. So that is about Pink Mind, and Pink Mind loves to offer different methodologies and different approaches for self development and better emotional being. So today I'm happy to announce or here, like, we are offering 2 days workshop on love yourself, heal your life, and I'm extremely happy to introduce here Mr. Vinay Gosavi, who is a trainer for today's webinar. इनके बारे में अगर मैं कहूँ तो विनय जी की फॉर्मल अगर मैं बताऊँ पढ़ाई, तो उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ा है, उन्होंने मास्टर्स किया है, उन्होंने एमफिल किया है, एमबीए किया है, एंड ही इज एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट डेवलपमेंट. ही इज अ एस्टैब्लिश्ड ट्रेनर. उन्होंने बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को बिहेवियरल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर किए हैं, और सबसे बड़ी जो खासियत है और उस वजह से आज हम सब लोग साथ में हैं, ही इज अ इंटरनेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर फॉर यू कैन हील योर लाइफ फाउंडेशन. ये यू कैन हील योर लाइफ फाउंडेशन आप शायद जानते होंगे, या आज के सेशन के दौरान हमें इसकी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी मिलेगी. बट ये सर्टिफिकेशन हासिल करना बहुत डेडिकेशन वाली चीज होती है. भारत में बहुत कम ऐसे सर्टिफाइड ट्रेनर है जो एक्चुअली यू कैन हील फाउंडेशन से सर्टिफाइड है. सो हम सारे ब्लेस्ड है कि आज हमें ऐसे ट्रेनर मिले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टुडेज सेशन टू Vinay sir. Welcome Vinay sir. Thank you so much, Poonam ji, and I am very honored to be on this platform of Pink Mind, which is dedicated for the cause of empowering all the participants on emotional and mental wellness. And part of it is we are offering this session on what is all heal your life and love yourself all about. So welcome dear all. सबका बहुत ही मनपूर्वक स्वागत है. Namaste. So Poonam ji has already introduced me, and I'm also excited to share the concepts, philosophy, and more of what this heal your life, how it is relevant to me. ये मेरे लाइफ में क्या बेनिफिट ला सकता है और how it is. Excuse me sir. Sir, आप थोड़ा सा can you talk loudly? Your voice is little. Okay, voice is. Yeah. Okay, just until. Okay, now is it audible? Yes, participant can also revert in chat box. Are you all comfortable with the audio? Yeah, you can just share the reactions so I can understand. Okay, thank you, Reena ji. It's good. Yeah. Okay, thank you, Pritam. Yeah, thank you, everybody. So we'll get started. So I would like to ask, you can unmute or just write in the chat box that how many of you have come across any of these concepts of you can heal your life, which is based on Louise Hay's philosophy. You can heal के बारे में आपने शायद बुक पढ़ा होगा या आपने कहीं YouTube में शायद वीडियो देखा होगा. Yes, in any way, if you could just share, just you can just write in the chat box. I, yes.
Thank you, Neelam ji. Yes, many of you have, and even if you haven't like read the book, that's also fine. It's not going to be a class. It's more of whatever the concepts are, how we can implement. And the best part is the simplicity and the deeper impact. Okay, so I have prepared a short presentation. It will help us to connect and more of just be with the flow. Just be wherever you are, just in relaxed mindset. And we'll get started. Yeah, I hope the screen is visible. Yes, but it's not full screen. Okay. Okay, that's, yeah, some technical issues, but that's fine. Okay. Okay, some technical is there. Okay, we'll move ahead. So we'll just come back to what is Heal Your Life, as Poonamji has explained. These are some of the workshops I have been conducting at various levels, some media coverage. These are like Louise Hayes, international trainers, Rick and Patricia. With them, I got certified and they had visited here as well. So various workshops we offer, but today is all about You Can Heal and more about you. So You Can Heal Your Life is based on the philosophy of Louise Hay. So you might have read or heard about the book. It is internationally bestseller. You Can Heal Your Life, and she's Louise Hay. So what is so unique and peculiar about Louise Hay? I would just like to highlight. I won't go much into the story, but how it can connect to our personal life and how it can shift positively. उसके बारे में मैं थोड़ा सा 2 मिनट में बताना चाहूँगा कि लुइस है, she was born in USA and उसके 2 पार्ट में उसका लाइफ हम बता सकते हैं. पहला लाइफ का पार्ट है जब वो 40 साल तक का उनका लाइफ का जर्नी, तो उसमें उनका जन्म एकदम सोशो इकोनॉमिकली बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में था, जिसमें उनके लिए इकोनॉमिकली पॉवर्टी थी, एजुकेशन ज़्यादा नहीं था, और जो भी उनके लाइफ में जो जीवन में अनुभव आए वो हमेशा ऐसे थे कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है. Is there anybody who doesn't follow Hindi? I hope Hindi English is fine. Yeah, if anybody has Hindi का issue है तो please just ping me, write in the chat box, so I can purely take in English. So I hope English Hindi is fine. So Louise Hay had a terrible upbringing because her stepfather, who was abusive, और बहुत सारा एक लेडी के साथ जो अलग अलग अनफॉर्चुनेटली लेवल पे अब्यूज हो सकता है, वो she had gone through all that. और 40 उम्र तक she did so many things to survive, get along. But fortunately एक सेमिनार में, एक वर्कशॉप में उन्होंने सुना कि अगर आप आपके विचार शिफ्ट करते हो, अगर आप अपने इमोशंस को पॉजिटिवली शिफ्ट करोगे तो योर लाइफ विल बी डिफरेंट. एंड दैट स्ट्रक हर. वो बोले, उन्होंने सोचा कि एज ऑफ नाउ अभी तक तो कुछ नथिंग ग्रेट हैज बीन अकम्प्लिश्ड, सो व्हाई नॉट ट्राई. मेरे पास लूज करने के लिए कुछ है ही नहीं. एंड देन शी स्टार्टेड फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट्स टॉट इन द वर्कशॉप. थोड़े थोड़े पॉजिटिव रिजल्ट आए और उसके बाद व्हेन शी स्टार्टेड फॉलोइंग और अच्छे रिजल्ट उनके लाइफ में आने लगे, उनका जिंदगी और अच्छी बनने लगी. उसी दौरान अनफॉर्चुनेटली उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ और कैंसर में डॉक्टर ने उनको सिर्फ 6 महीने का लाइफ स्पैन दिया था. लेकिन तब तक लुइस का बहुत सारा खुद पे और लाइफ के बारे में, या मेटाफिजिक्स जिसे बोलते हैं या आजकल न्यूरोसाइंस बोलते हैं, कि विचार और इमोशंस का हमारे होलिस्टिक लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है. तो उन्हें ये कनेक्शन मालूम पड़ा कि जो मुझे कैंसर बीमारी हुई है, ये सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं है. जो मैंने अब तक 40 साल तक जो भी भावनाएं, जो भी अनएक्सप्रेस इमोशन जो मैंने पाइल अप करके रखे हैं,
क्योंकि इमोशन इज एनर्जी इन मोशन, तो वो एनर्जी है, और हम स्कूल में पढ़े हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो वो मैंने स्टोर करके रखी है, एंगर, फियर, गिल्ट, इसी अलग अलग इमोशंस। और अगर मैं ये पैटर्न रिलीज करूंगी तो मेरे फिजिकल और इमोशनल और हर लेवल पे बदलाव आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं पैटर्न बदले बिना सिर्फ ट्रीटमेंट लूंगी तो डिसीज फिर से बढ़ सकता है। शी वर्कड ऑन हर, and even in medical history she is considered as miracle कि in 6 months she could cure her cancer। और उसके बाद she lived for more 50 almost 50 great years। और उसमें उन्होंने 72 कंट्रीज में ये नॉलेज स्प्रेड किया, और उसलिए उन्होंने टाइटल रखा उनके कॉन्सेप्ट का, यू कैन हील योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि जैसे लोगों को बहुत बार लगता है कि हीलिंग माने कोई तो आएगा, मसीहा आएगा, मेरे सभी प्रॉब्लम को मुझे दूर लेके जाएगा। दैट कैन बी ऑल्सो वन एस्पेक्ट ऑफ हीलिंग, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कि नेचर और गॉड हैज गिवन अस all the capacity, all the ability and all the choices to heal our life। तो बहुत बार हम जब बोलते हैं कि heal your life, ऐसा क्यों नाम है, मुझे तो कोई बीमारी नहीं है वैसी, या मेरा जीवन तो वैसे ठीक ठाक अच्छा चल रहा है। सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि कुछ गलत या निगेटिव हुआ है, कुछ बीमारी है इसलिए आपको खुद की जीवन को सुधारना या संवारना है। इसका मतलब ये भी है कि हमारी जो क्षमता है, हमारी जो एक कैपेसिटी या पोटेंशियल है, उसको हमें बेस्ट वर्जन हमारा बन के हाउ वी कैन लीड आवर लाइफ। So again, let's connect with some of the aspects of what is Heal Your Life all about. So this we have already discussed. So अभी छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, you may answer। दिख रहा है स्क्रीन आपको? Yes, just a minute। Just give me a minute। Yeah। So लुइस है का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फिलॉसफी का, वो है सेल्फ लव, खुद से प्रेम या खुद से प्यार करना। कभी कभी लोगों को लगता है ये क्या है, लेकिन उसके पहले मैं कुछ सिंपल प्रश्न पूछूंगा आपको, मन में या खुद से उसके बारे में सोचना है। इज इट विजिबल? या। So do you notice a constant stream of negative dialogue in your head? हम बहुत सारी चीजें करते हैं, ऑफिस को जा रहे हैं, परिवार वालों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, क्या हमें बैकग्राउंड में ऐसा नॉइज सुनाई देता है, अरे नहीं तेरे से नहीं हो पाएगा, यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट केपेबल, ऐसे कुछ भी थॉट्स आते हैं क्या कभी कभार या फ्रिक्वेंटली? क्या हमारे पास्ट में कुछ घटा है, कुछ हुआ है, उसके कारण हम खुद को ज्यादा जज कर रहे हैं सिचुएशन से या लोगों के व्यू से? या कुछ लोग मुझसे नाराज है या मुझसे खुश नहीं है, उसके कारण हम खुद को जज कर रहे हैं कि अगर ये लोग मुझसे संतुष्ट नहीं है सो माय लाइफ इज नॉट वर्थवाइल। या बहुत बार हमें बोला गया है स्कूल से लेके, इवन विद गुड इंटेंशन, कि तुम्हें ये नहीं आता, ये नहीं कर सकते, तुम मनी मैनेज नहीं कर सकते, रिलेशन इज योर वीकनेस, व्हाटएवर। लेकिन क्या हम खुद को अपने वीकनेस से जज करते हैं? और बहुत बार हमें ऐसे लगता है कि नहीं, इन हालात के कारण, इन सर्कमस्टेंसेस और ये पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण मुझे मेरा माय लाइफ इज नॉट मूविंग अहेड। Does any question from this list resonate with you in any way? ऐसे कभी थॉट आते हैं या डू यू फील कि ऐसे कुछ कनेक्शन है इसका? Yes, you can just write in the chat box as I, or you can just raise hand in reaction. Yeah, Gangotri ji, thank you for that honest reply. Yeah, we all are human beings. We go through various
transitions, and that's the sign that we are a normal human being. हम ऐसे कोई संत महात्मा नहीं है कि सब माया है. Yes, we are in the transition. Yeah, thank you for your responses. And now, before we begin, I would just like all of you to experience this small self-awareness exercise, which will help us to connect with ourselves and even to get the benefit of this workshop. So abhi aapko ek simple process karna hai. I will play a soft music and I will guide you through certain simple process, and just be relaxed. आपको अभी जहां भी है, if you are not driving or if you are in somewhere in between in middle of something, so please just listen, don't do it if you are driving or something, but hopefully most of you are at home, so you can do this definitely. So अभी हम क्या करेंगे, छोटा सा exercise है. So I would like all of you to sit comfortably, sit very in relaxed position, and just follow whatever is being shared. So all are ready? Just relax and let's do this simple self-awareness exercise. So just sit in a relaxed position. If possible, you can close your eyes. You can sit comfortably, or you can, if you want, you can lie down as well. Because you deserve all the love and happiness in the world. Slowly breathe in, slowly breathe out, and feel a breeze, gentle and relaxing wave of relaxation passing from top of your head towards your toe, completely relaxing and rejuvenating. Again, slowly breathe in, slowly breathe out. Just be in the present moment. फिर से हम slowly breathe in कर रहे हैं. सर से लेकर पांव तक हम पूरे बॉडी को मन ही मन में रिलैक्स ऐसा गाइड कर रहे हैं. And we are feeling relaxed. We are going to do a small breathing exercise and then a short self-awareness exercise. So allow these guidelines to deeply enter into your conscious and subconscious mind. As you are breathing in your mind say relax. And as you are breathing out, you can say let go. Whatever is uncomfortable, whatever is not true to yourself, aligned to yourself, we are releasing it away. अब एक छोटा सा एक्सपीरियंस हम ले रहे हैं. आपको सिर्फ मेरी आवाज की ओर ध्यान देना है. जब हम ब्रीद इन करेंगे तो नॉर्मली नॉस्ट्रिल से हम ब्रीदिंग करेंगे, और जब ब्रीद आउट करेंगे तो हम ये 3 बार रिपीट करेंगे. क्योंकि जब हम अडल्ट फेज में रहते हैं तो बहुत बार अनसेड इमोशंस हमारे मन में, शरीर में स्टोर होती हैं. तो वो इमोशंस जो हमारे माइंड में स्ट्रेस या प्रेशर के रूप से होती है, वी आर जस्ट अलाउइंग इट टू गो अवे फ्रॉम आवर एग्जिस्टेंस. सो सिंपल एक्टिविटी हमें करनी है. ब्रीद इन एंड देन ऐसे आवाज मुंह से निकाल कर हमारे मन और शरीर पे जो दबाव है इमोशनल, वो हम लेट गो कर रहे हैं. सो विल डू इट 3 times without any
hesitation, without shying out. So let's do it together. Slowly breathe in and let it go. Feel that that burden is going away. One more time. Breathe in. Let it go. One more time, last time. Slowly breathe in. Feel unburdening. Feel the experience of letting go. You're perfectly safe and grounded. Now, please keep your eyes closed. We are going to have this short self-awareness activity. Imagine a normal routine day of your life. Visualize any normal day of weekdays. And just imagine the day has just started. You have got up. As you have got up, what are the first thoughts coming into your mind? अभी सुबह हो गई है, हम उठ गए हैं. Just feel that, imagine that. What are the first thoughts coming in your mind? Be observant like a CCTV. Don't judge, don't blame or criticize. Just be a third person observer of your own self. So are these thoughts empowering or helpful? Or they are like neutral day thoughts? What I have to do in the daytime? Or am I feeling stressed, burdened? Just observe what are the first thoughts of the day. And now, as the day is moving ahead, you are getting ready. As you are getting ready, what are the thoughts coming to your mind? Are they positive? Are they neutral? Or you are feeling stressed or worried? Just observe. As the day is again passing ahead, you are preparing yourself, you are traveling to your work. What are the typical thoughts rushing in your mind? कितना काम पेंडिंग है, मुझे ये करना है, ओ मैंने ये किया नहीं है. Yeah, you are composed, you are in control, or these are just routine thoughts. You are not even aware that I'm thinking. Just be observant. Again, not complaining yourself, no criticizing. Just move with the flow. As we start the day, what are the first things coming in your mind as you start your day? Are you grateful for the work you have got? Or it's just a routine day, or you feel I'm at wrong place? During middle of the day, what are my typical thoughts? Do I criticize myself for not performing well? I'm carrying some past burden, or I'm feeling that my skills, abilities, and talents are being utilized wonderfully, and I'm being paid very well. As you are closing the working day and going home, what are the typical thoughts? They mingle around. Just be observant. And in the evening, when you are at home or at your own place, do you feel scared of being alone? Do you feel overwhelmed or threatened by other people's dominance? Or you feel that you are in perfect body doing perfect things at right time? Just be observant. And finally, as we close the day, as we are about to go to the bed, what are my typical thoughts?
Do I feel grateful for the whole day, being alive, being on purpose? Or do I feel, oh, the one day has passed? Or are you just not even aware that I'm closing the day? Just be observant. Just be with the flow. And now, again, take a slowly deep breath. Slowly breathe out. Bring back your awareness to where you are. Come back to the present moment. And whenever you are ready, gently you can open your eyes. Yes, you can come back. If possible, you can turn on the camera. If it is not, that's perfectly fine. Yeah, so if you could share during the day from morning till we close the day, could you find certain areas where you can shift your thoughts to more meaningful and empowering one? Or could you find somewhere you feel that you have given up that control to people or situation and you feel overwhelmed? विनय जी आप हिंदी भी बीच बीच में इस्तेमाल करेंगे? Yeah, sure. Thank you for that reminder. Yeah. ऐसा इस दिन के एक्सरसाइज में, अवेयरनेस एक्सरसाइज में आपको ऐसे कभी महसूस हुआ कि जब मैं मेरे थॉट्स को और अच्छी तरीके से कैसे शिफ्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे थॉट्स ऐसे रूटीनाइज हो गए हैं कि अभी वो पैटर्न बन गया है एनीवेयर। और अगर अच्छा है तो भी बताइए, हम ऐसा नहीं चाहते कि आपके दिन, क्योंकि ये वर्कशॉप का उद्देश्य यही है कि हम और अच्छी तरीके से हमारे चॉइसेस जीवन के कर सके और हमारे जीवन को और अच्छे लेवल पे ला सके। Yes, any sharing or even you can write in the chat box. 1 or 2 sharing I would definitely appreciate. Yes, if you feel. मेरा खुद का अनुभव ये था कि मुझे कभी-कभी चैलेंजिंग लग रहा था कि सोच पाना कि मेरी शुरुआत कैसी होती है और क्या थॉट्स एंड फीलिंग होते हैं। तो पूरा ये होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मोस्टली मॉर्निंग मेरी सिर्फ भागने में ही चली जाती है। Without having that connection with myself, how am I feeling and what is happening, my schedule is such a fixed way कि बस मैं वो algorithm की तरह step by step करते जा रही हूँ। So this is what I realized. It was difficult for me to identify कि exactly उस वक्त feelings क्या होता है, excitement होता है क्या, looking forward हूँ क्या। एक चीज मुझे थोड़ी लगी कि मॉर्निंग मेरी स्ट्रेसफुल रहती है और इवनिंग थोड़ा मेरा रिलैक्स एट ईज होता है। ओके, वंडरफुल इसलिए क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रहा है। क्योंकि कभी बार हमें लगता है अरे ये अवेयरनेस के बाद मुझे और मायूस लग रहा है और डाउन लग रहा है क्योंकि अरे मुझे ऐसा लाइफ रोज जीना नहीं है, मुझे और अच्छे से शिफ्ट करना है। लेकिन लुइस है का मानना है और कहना है विच इज वेरी ट्रू कि जब भी हमें हमारे कुछ निगेटिव पैटर्न दिखाई देते हैं कुछ सिचुएशन के कारण या कुछ आत्म परीक्षण ऐसे इंट्रोस्पेक्शन के कारण, तो हमें ट्रेजर मिल रहा है, हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे डॉक्टर को जब डायग्नोसिस परफेक्ट होता है तो ट्रीटमेंट इज लाइक 50% डन, क्योंकि अभी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय हो रहा है। वैसे ही हमारे लाइफ में कुछ अच्छा किधर नहीं, इट्स नॉट इन द रिदम और फ्लो, ये हमें पता चलेगा तब हम उस पर काम कर सकते हैं, तब हम गोल सेट कर सकते हैं और यो जो अभी कॉन्सेप्ट है जो अब हम आगे अभी डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में सॉल्यूशंस ले सकते हैं। सो नो वरीज कि अगर हमारे कुछ चीजें हमें चैलेंजिंग लग रही है, क्योंकि थॉट से ही हमारी धारणाएं मान्यताएं बनती है, उसे हम बिलीफ कहते हैं। और अगर हम विचार भावना और धारणाओं को बिलीफ्स को बदलेंगे तो हमारी पूरी जिंदगी हम
उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव शिफ्ट ला सकते हैं। ये हमने बहुत बार सुना है, लेकिन ये करना कैसे है? ये सिर्फ बातें हैं या इसका कुछ रियल टाइम फायदा भी है? क्योंकि जो भी हम विचार करते हैं, एवरी थॉट वी थिंक इज क्रिएटिंग आवर फ्यूचर, और जो भी हम सोचते हैं वो हमारा फ्यूचर कर रहा है, बना रहा है। तो आपने सुना होगा बहुत बार कि हम 60,000 विचार रोज करते हैं ऑन एन एवरेज व्हेन वी आर ग्रोन अप अडल्ट्स, लेकिन हम बहुत कम बार सोचते हैं कि इसमें से कौन सा विचार मुझे आगे ले रहा है, कौन सा विचार मुझे नीचे ले रहा है। क्योंकि हमारा रूटीन में एक पैटर्न बना होता है, बचपन से लेके फैमिली पैटर्न, सोशल पैटर्न, ऑफिस पैटर्न। ऐसे बोला जाता है कि जब जैसे बारिश के बाद, हम भारत में है तो हमें विलेजेस का एक्सेस है, हमारे खुद के गांव में भी हम जब जाते हैं तो मराठीत त्याला एक पायवाट तयार होणे म्हणतात, ज्याला हिंदी में हम पगडंडी या पाथवे कहते हैं। तो वो पाथवे या पगडंडी कैसी तैयार होती है? when many people travel on the same route, तो उधर एक छोटी सी एक पाथ या पगडंडी तैयार हो जाती है। वैसे ही न्यूरोसाइंस के हिसाब से जब हम एक विचार रोज 300 से ज्यादा कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली करते हैं तो उसका एक न्यूरो पाथवे तैयार हो जाता है, हमारे ब्रेन का एक पैटर्न बन जाता है। और ब्रेन को ये पता चल जाता है कि ये विचार इसके लिए इजी है, ये इसको अच्छा लगता है। तो उसमें से कुछ अच्छी भी चीजें हैं जो हम करते हैं, हमारा खुद का बॉडी का ख्याल रखना, इमोशनली खुद को बैलेंस रखना, फाइनेंशियली खुद को कोप अप करना। लेकिन कुछ पैटर्न है जिधर हम खुद को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते, खुद को लो सेल्फ स्टीम में पाते हैं, खुद को निगेटिविटी में पाते हैं, और हम अपने लाइफ को और एम्पावरिंग नहीं कर सकते। तो इसे पैटर्न को कैसे चेंज करना है, इसके बारे में हम थोड़ा सा शेयर करेंगे। और इसके लिए ऐसा बताया जाता है कि वंडरफुल टूल है दैट इज अफर्मेशंस, जो लुइस है का भी फेवरेट वर्ड या टूल है। अफर्मेशंस यानी क्या? जैसे अभी हमने ये देखा कि पगडंडी कैसे, पाथवे कैसे तैयार होता है, वैसे ही हम देखते हैं कि जब हम किसी बीज को बोते हैं तो उसका पेड़ में या पौधे में रूपांतर होने में एक इट टेक्स टाइम। ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है अभी आपको? या सो वैसे ही जब हम एवरी थॉट वी आर थिंकिंग, और हर शब्द जो हम बोल रहे हैं खुद से या मुंह से, तो वो दोनों भी अफर्मेशन है, ऐसा लुइस है का मानना है। तो इसका हमारे ऊपर परिणाम क्या होगा? जो भी हम बोलते हैं उसका जैसे एक बूंद से कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन बूंद बूंद से तालाब बन सकता है। वैसे रोज हम बरसों से जो सोच रहे हैं वैसा ही हमारा पैटर्न बनता है। और जैसे बीज से पौधा बनने में एक समय लगता है, वैसे ही हमारे विचारों से हमारी धारणाएं, बिलीफ बनने में भी समय लगता है। लेकिन इन विचारों का हम पे क्या परिणाम हो सकता है? और ये अफर्मेशन के कारण, पॉजिटिव अफर्मेशन के कारण हम हमारा पैटर्न कैसे बदल सकते हैं, उसका एक बहुत बड़ा योगदान, कंट्रीब्यूशन लुइस है ने हमें दिया है। वो है उनके बुक में भी अगर आप देखोगे तो वो है कि हमारे विचारों का हमारे शरीर पे या बीमारियों पे क्या परिणाम होता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि हमें ये हमारा पैटर्न होता है कि बहुत बार हमें लगता है कि मेरा बीमारी है ये कुछ एक्सटर्नल चीजों से हो रही है और मुझे सिर्फ डॉक्टर के पास जाके बीमारी का दवाई लेनी है, एंड आई हैव टू हील और ट्रीट माई सेल्फ। दैट डेफिनेटली एज अ लॉजिकल पर्सन वी नीड टू डू। लेकिन उसके साथ ही साथ क्या आपको पता है कि कुछ इमोशंस हमारे हमारे खुद के बॉडी पे निगेटिव इम्पैक्ट ला रहे हैं? आपने कभी ये महसूस किया है कि कुछ चीजें हमारी विचारों का हमारे शरीर पे परिणाम होता है? लुइस है के रिसर्च के हिसाब से, येल यूनिवर्सिटी और लुइस है का एक रिसर्च था,
उनके बुक में भी आप पाएंगे कि बहुत सारे पेजेस में उन्होंने वो रिसर्च के आउटकम दिया है कि बहुत बार किसी को पीठ दर्द है या शोल्डर पेन है, तो हमारे इमोशन, जैसे हमने पहले देखा कि इमोशन एक एनर्जी है, और एनर्जी हमने बचपन में फिजिक्स में पढ़ा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, वी कैन ओनली ट्रांसफॉर्म इट। हम एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदलाव ला सकते हैं, लेकिन एनर्जी को हम नाश नहीं कर सकते। तो जो भी इमोशन या फीलिंग हम सोच रहे हैं, बहुत बार हम मन ही मन में बहुत कुछ सह लेते हैं, बहुत कुछ बोल लेते हैं, लेकिन वो बाहर एक्सप्रेस नहीं निकलता। या हम गुस्सा भी होते हैं, लेकिन वो मन से वो भावना नहीं जाती। तो 5 ऐसी इमोशन है, 4-5, जो हमारी बॉडी को 60 से 70% बीमारियां ला सकती है। दीज आर प्रोबेबल कॉजेस, ये चांसेस है कि उससे बीमारी होती है। एक है गुस्सा करना या क्रोध करना, एंगर। एंगर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दूसरों को गुस्सा होना, खुद पे भी हम जब एंगर यूज करते हैं और व्हेन वी गेट एंग्री ऑन आवरसेल्व्स, तब भी उसका परिणाम हो जाता है। फियर, जब हम डरते हैं यानी इनसिक्योर फील हो करते हैं, अनकंफर्टेबल या शाय फील करते हैं। फिर है क्रिटिसिज्म, जब हम खुद को या दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं या ब्लेम करते हैं, निंदा करते हैं। गिल्ट, गिल्ट यानी क्या? लुईस है का मानना था कि पूरे उसके 40 साल में उन्होंने हजारों लाखों लोगों के साथ काम किया, हजारों लाखों लोगों का जीवन में बदलाव लाया, और वो कहती है कि एक सेंटेंस में, एवरीबडी इज सफरिंग फ्रॉम दिस फीलिंग दैट आई एम नॉट गुड इनफ। हर एक बंदा इस दुनिया में ही सफरिंग कौन सी चीज से? कि मैं कहीं ना कहीं किसी कारण में मैं अच्छा नहीं हूँ। मैं फाइनेंस में अच्छा नहीं हूँ, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मैं रिलेशन में, आइदर मेनी और एटलीस्ट वन, किसी ना किसी तरह से। और सेल्फ लव यानी क्या है हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले विचारों का और हमारे शरीर पे, जैसे वो बोलती है कि जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे आजू बाजू में द पीपल आई ट्रस्ट और आई लव, वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, या मुझे कोई बैकिंग नहीं दे रहा, तो हमें पीठ दर्द होता है। When we feel that हमारी जिम्मेदारी का बोझ बहुत है, when we feel that we are overburdened with responsibility, तो शोल्डर शो अप करते हैं। जब हमारे आइडेंटिटी में हमें कंफ्यूजन होता है, मैं कौन हूँ, तब हमारा सिर दर्द करने लगता है। जब हमें कभी भी गिल्ट लगता है तो ज्यादा पेन हम महसूस करते हैं। जब स्टमक में ज्यादा हम फियर और इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं तो पेन, एब्डोमिनल में ज्यादा पेन हम महसूस करते हैं। जब हम जिंदगी के बदलाव के अनुसार हो, लोगों के बारे में हो या सिचुएशन के बारे में, जब हम बदलाव के लिए तैयार नहीं है, जब हम रेजिस्ट करते, तब हमारे जो जॉइंट्स है, एल्बोज है, नीज है, हमारी गर्दन है, उसमें पेन महसूस होंगी, क्योंकि हम मेंटली अडेप्टेबल नहीं है, तो फिजिकली भी। ऑफ कोर्स मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये प्रोबेबल कॉजेस है जो 60 से 70% कनेक्ट हो सकती है। ऐसे A टू लेके Z तक बहुत सारी चीजें हैं, हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है, लेकिन हम उनसे नजरअंदाज करते हैं, वी निग्लेक्ट इट एंड वी जस्ट ट्राई टू हील इट बाय जस्ट एक्सटर्नल थिंग्स। लेकिन पैटर्न नहीं बदलेगा तो वो डिस ईज, यानी कि हम हमारी इमोशंस, फीलिंग्स और लाइफ का फ्लो ईज में नहीं है। लेकिन व्हेन वी आर अलाइंड बॉडी, माइंड, हार्ट, स्पिरिट में, जब हम एक संतुलित जीवन का अनुभव करते हैं, तो हमारा शरीर और मन का जो कनेक्शन है वो हम देख पाते हैं। तो सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम खुद को आत्म केंद्रीय हो जाए या स्वार्थी हो जाए और खुद के बारे में सोचे, क्योंकि हमारी ये बचपन से हमें बताया गया है कि नहीं, दूसरे के बारे में सोचो, दूसरों को का ख्याल करो। स्पेशली जो गृहिणी या लेडीज है उनको, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताया जाता है कि थोड़ा हमें सेल्फ सैक्रिफाइसिंग होना चाहिए। लेकिन जब, जैसे बहुत सारे आज लाइफ कोच बताते हैं कि जब हम एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं तब क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, स्पेशली ऑक्सीजन मास्क के बारे में। एनीबॉडी रिमेंबर्स क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ऑक्सीजन मास्क के बारे में? पहले ऑक्सीजन मास्क किसे पहना है?
यस, आर यू विथ मी? किसे पहना है ऑक्सीजन मास्क पहले? या यस योगिता, खुद को पहनना है। यस एब्सोल्युटली, क्योंकि हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह पाएंगे, तो हम यस पहले खुद को बचाए, फिर हमारे नियर एंड डियर वालों को बचा सकते हैं। सो ऐसे ही वी कैन नॉट सर्व विद एम्प्टी वेसल। हम ही खुद के साथ, हमारा प्रेम का रिश्ता नहीं है, स्वीकार भाव का रिश्ता नहीं है, हमारे खुद के साथ ही हार्मनी नहीं है, तो हाउ कैन वी गिव आउट विच वी डोंट एक्सपीरियंस? आई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग, आई एम येलिंग एट माई सेल्फ। मैं खुद के साथ, हाँ तुमसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं, परेशान हूं मैं, बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में, लाइफ को आउट ऑफ कंट्रोल। ये लुई से का ही अफर्मेशन है, ऑल इज वेल। पहले हमें खुद को बताना है, खुद को महसूस करना है कि थिंग्स आर इन कंट्रोल, आई कैन हैंडल, आई एम मोर पावरफुल देन माय लाइफ सिचुएशन। तब हमारा खुद से रिश्ता अच्छा हो सकता है। हम खुद के अनहील्ड पार्ट, बचपन के हो, रिसेंट पास्ट के हो, किसी एक लाइफ के एस्पेक्ट के हो, उसे हम अनकंडीशनली एक्सेप्ट करेंगे, उसको बिना किसी जजमेंट के स्वीकार करेंगे, तो हमारा खुद का, और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल हमने सबने खुद अनुभव किया है, वो है जब हम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे थे। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सेल्फ लव, सेल्फ हेट्रेड इज टॉट, बट सेल्फ लव इज इनबॉर्न। जब हम पैदा हुए, when we were born, we were full of self love. हम खुद को एक्सेप्ट करते थे, हमारा गुस्सा, हमारा प्यार, हमारे एक्साइटमेंट, सब कुछ हम नेचुरली एक्सप्रेस करते थे। हमने कभी खुद को जज नहीं किया कि मेरा नाक बराबर नहीं है, मेरा कॉम्प्लेक्शन बराबर नहीं है, मेरा आवाज ठीक नहीं है। एज अ चाइल्ड वी वेर लविंग एंड लवेबल जस्ट बिकॉज वी एग्जिस्ट। यस, सो सेम वे हमें जिसने निर्माण किया है, ऑफ कोर्स पेरेंट्स, एंड बियॉन्ड दैट आवर यूनिवर्स लव्स अस अनकंडीशनली। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमें प्रोग्रामिंग हो जाता है कि क्योंकि तुम मैथ्स में ठीक नहीं हो तो तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा इस एरिया में ज्यादा एक्सपर्ट है तो तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारे लुक्स अच्छे ऐसे है तो तुम अच्छे नहीं हो, तुम ऐसे ऐसे सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो तो तुम अच्छे नहीं हो। So subtly, even parents or teachers with good intention, we have to be grateful always to them. लेकिन हमने क्या परसीव किया, क्योंकि उनके इस विचारों से हम कनेक्ट नहीं हो रहे and not aligned with their expectations, so I am not good enough, I am not worthy, I am not what I am not. तो इसके कारण हमारा खुद से कनेक्शन somewhere we lost it, or we had that disempowering thought. तो इसलिए ये निगेटिव पैटर्न को शिफ्ट करने के लिए हमें अफर्मेशन करने की जरूरत है। कैसे किया जाए, उसका सबसे पहला ये है, आप देख सकते हैं स्क्रीन क्या? सो उसका पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें ये पहले एक्सेप्ट करना है, ये पहले खुद को कन्विंस करना है कि मेरे लाइफ का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। आई कैन चूज माई इमोशंस एंड माई थॉट्स। और हमें 60,000 विचार नहीं बदलने, हमें सिर्फ ये प्रेजेंट मोमेंट का थॉट, पहले उसे क्वेश्चन पूछना है ये थॉट को कि डज दिस थॉट क्रिएट माई फ्यूचर वंडरफुली और नॉट। ये सिंपल दिन में 3-4 बार हम अपने थॉट्स को रैंडमली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या ये थॉट मेरे जिंदगी को, मेरे लाइफ को और बेहतरीन बना रहा है या ये डिसएम्पावरिंग है। एंड देन इट इज जस्ट अ थॉट एंड थॉट कैन बी चेंज। हम मोर एम्पावरिंग थॉट को बदल सकते हैं, और उसके लिए एक बेहतरीन तरीका है, वो है मिरर वर्क। सो व्हाट इज मिरर वर्क? यस, डू यू नो मिरर वर्क? यस, आप आईने में देखते हैं? यस, या आई नो सर मिरर वर्क। हर दिन सुबह उठने के बाद पहला काम ऐसा है कि मिरर में देख के खुद को आई लव यू बोलना सीखो। वेरी आप गुड, खुद से प्यार करते हैं ये बताना सीखो। वंडरफुल, थैंक यू जी। या
लेकिन क्यों करते हैं मिरर वर्क? क्योंकि थैंक यू सिमर जी, अप्रिशिएटिंग वन सेल्फ। मिरर वर्क क्यों करते हैं? क्योंकि आईना जैसे है हमें वैसा दिखाता है, भले हमारे एक्सटर्नल पर्सनालिटी को। लेकिन बहुत बार जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, हमें आंखों में देख के बहुत बार लोगों ने, स्पेशली अडल्ट्स और सीनियर्स ने बोला तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हें ये नहीं आता है, एंड वी टुक इट एज अ रियलिटी, दो इट वाज नॉट अ एब्सोल्यूट रियलिटी। लेकिन अगर हमें खुद का प्रोग्रामिंग बदलना है तो लुइस है वाज अ स्टॉन्च बिलीवर कि मिरर हैज अ पावर टू शिफ्ट आवर बिलीव्स एंड आवर सेल्फ टॉक। क्योंकि जो बातें हम खुद से बिना बोले करते हैं उसे सेल्फ टॉक बोलते हैं। तो अगर हम अपना सेल्फ टॉक बदलेंगे, हम खुद के बारे में जो हमारा बिलीफ है, क्योंकि हमें लगता है आई एम नॉट वर्दी, कई बार अपॉर्चुनिटी आते हैं लेकिन हमें लगता है आई डोंट डिजर्व इट। सो ये डिजर्वेबिलिटी इंपॉर्टेंट है कि यस, यूनिवर्स इज ऑफरिंग, हमारे लिए ये पूरा यूनिवर्स देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर हम बंद मुट्ठी करके रहेंगे तो हम रिसीव नहीं कर पाएंगे। हम तभी दे सकते हैं जब हमारे पास कुछ है, तो पहले रिसीव करना इंपॉर्टेंट है, एंड रिसीविंग एंड गिविंग इज लाइक अ साइकिल। तो सेल्फ लव मिरर वर्क में हम खुद से कनेक्ट होते हैं। सो मेनी टाइम्स वी ट्राई टू रन अवे, बट रनिंग अवे विल नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। व्हेन वी कनेक्ट, व्हेन वी आर एज अ टीम, हम खुद से एक अच्छा कनेक्शन है। तो आंखों में देखकर जब हम अफर्मेशन करते, अफर्मेशन यानी क्या कि मैं हमेशा बीमार होता हूँ, मेरा पास मनी, मेरे पास टिकता नहीं है, मेरे रिलेशनशिप में लोग मुझे धोखा देते हैं, मेरी सेहत, मेरे फैमिली में कुछ ही लोग मुझे अच्छा ट्रीट करते हैं, ये भी अफर्मेशन है, लेकिन ये निगेटिव अफर्मेशन है। हम खुद को ब्लेम कर रहे हैं और हालात को रिस्पॉन्सिबल रख रहे हैं। लेकिन इसे चेंज करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कि जो भी हमें थॉट्स करना है वो फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ और विथ फीलिंग कहना है। आई एम और आई हैव, मैं हूं या मेरे पास है। जैसे मैं वर्दी हूं, लुइस के कुछ फेवरेट फंडामेंटल अफर्मेशन है, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली एज आई एम। अभी आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, दोनों हाथ आप अपने सेंटर हार्ट, जिसे एनर्जी हार्ट बोलते हैं, आपके चेस्ट के इधर बीचों बीच रख सकते हैं। इफ यू फील लाइक, यू कैन जस्ट क्लोज योर eyes for just half a minute. Take a deep breath, slowly breathe out, and say to yourself without judging, without any filter of criticism, and say to yourself, feel it, I love and accept myself exactly as I am. I trust life. I am safe. Just feel it. Let it sink in your personality. I am willing to change and grow. I am worthy. I am good enough. I am healthy. I am loving and lovable. Any positive thing you want to say to yourself, I am safe. It's okay to feel, express, and release emotions. Just feel it. Feel proud of yourself that you are gifting yourself self-love. Yes, slowly you can open your eyes. Thank you. So self-love is connecting with ourselves at body, mind, and heart, spirit. It is nothing artificial. Blaming, criticizing oneself, it's rather artificial, but so many people do it, so we think that it is normal. And another part of Louis Hay's teaching is inner child, healing our inner child. As per the psychology and research, हम जब भी बड़े हो जाते हैं, भले हम 40s के हो, 50s के हो, 30s के हो, हमारे अंदर एक छोटा बच्चा रहता है एज अ कॉन्सेप्ट एंड एज अ एंटिटी एज वेल, कि जिसने बचपन में जो भी एक्सपीरियंस किया है वो बच्चा, या उसे इनर चाइल्ड कहते हैं,
वो देखना चाहता है कि मुझे सेफ फील हो रहा है क्या, मुझे नेचुरल, जैसे छोटे बच्चा जो 3-4 साल का है उसकी नेचुरल बेसिक नीड क्या रहती है, उसे पेरेंट्स दिखे तो उसे सुरक्षित लगता है, ही वांट्स टू बी हैप्पी, ही वांट्स टू बी जॉयफुल, उसे रिस्पेक्ट चाहिए, उसे एक्सेप्टेंस चाहिए, उसे एक सिक्योरिटी चाहिए और उसे फन चाहिए। सिमिलरली हमारे अंदर जो भी इनर चाइल्ड है उसे भी ये चीजें चाहिए, लेकिन बहुत बार हम वो चीजों के साथ या पोजीशन के साथ कॉम्पनसेट होने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो इनर चाइल्ड बहुत बार वुंडेड रहता है, जख्मी रहता है, कभी कभी गिल्ट शेम के कारण, कभी कभी उसको ठुकराया गया है ऐसी भावना होती है, अबंडनमेंट, कभी कभी उसको कुछ लोगों के साथ उसका विश्वास, उसने जिस पे विश्वास रखा होता है, there is a breach of trust, he feels deprived or betrayed, उसे लगता है कि मेरे पास विश्वासघात हो गया है, और he feels neglected, उसे ध्यान नहीं दिया गया, उसे अप्रिशिएट नहीं किया गया। तो हीलिंग इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ दिखाना है कि मैं हील्ड हूँ, लेकिन बचपन से लेके आज तक जो भी मेरे पर्सनालिटी के लाइफ के फेजेस है उसे पहले एक्सेप्ट करना है, और जिधर भी निगेटिविटी हुई है, हादसे हुए हैं, उधर उसको रीपेरेंटिंग करना है, जो भी हमें नहीं मिला उसको पॉजिटिवली सपोर्ट करके हमें और नए तरीके से जिंदगी में आगे जाना है। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम शेयर करके विल जस्ट कंक्लूड कि एक कॉन्सेप्ट और है, क्योंकि बहुत बार पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बताया गया है और हमने बहुत बार कभी कभी ओवरडोज हो जाता है पॉजिटिव थिंकिंग मोटिवेशन का, और हमें लगता है ये कुछ काम नहीं कर रहा, ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, क्योंकि सो मच मेरे दिमाग में, मेरे अंदर इतना कुछ स्टोर है कि मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही, और सिर्फ मैं बोल रहा हूँ आई एम लविंग माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट, और आगे नहीं जा रही। क्यों नहीं आगे जा रहा है? जैसे किसी बर्तन में पुराना सभी बासी खाना है, अगर हमने वो क्लीन नहीं किया और उसमें फ्रेश अच्छे भी कुछ व्यंजन डाले हैं, अच्छे कुछ मेन्यूज डाले हैं, फिर भी वो पुराना है तो वो नहीं गया, इसके लिए नया भी खाना खराब हो जाएगा। वैसे ही जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको सिर्फ ब्रीद इन करना है, ट्राई कीजिए, सिर्फ ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट नहीं करना है, जस्ट ट्राई इट। कैन वी जस्ट ब्रीद इन? नो। यस, आप अभी ब्रीद आउट कर सकते हैं, अभी मैं बोलूंगा आपको सिर्फ ब्रीद आउट करना है, ब्रीद इन नहीं करना है। ओके, डोंट एक्सपेरिमेंट टू मच, इट्स अ रिदम, ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है, ब्रीद इन। वैसे ही कुछ पाने के लिए हमें कुछ छोड़ना भी है, कुछ नई चीजें अंदर लानी है। तो जो भी 10 साल 20 साल बचपन में जो भी ट्रॉमा है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो हमें आगे बढ़ नहीं दे रहा है, उसे लेट गो करना है, उसे कहीं तो कहीं कभी ना कभी काटना पड़ेगा आगे जाने के लिए। नहीं तो 2023 अप्रैल 1 तारीख को हम खुद को ही अप्रैल फूल बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम रिप्ले कर रहे हैं 2010 में क्या हुआ मेरे लाइफ में, इन लोगों ने मुझे ऐसा कर दिया, चुन चुन के मैं बदला दूंगा। और बहुत बार लोगों को लगता है नहीं मैं फॉरगिव नहीं करूंगा, मैं माफ नहीं करूंगा, इस व्यक्ति को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन हमें माफ करना इसका कारण ऐसा नहीं कि उसके पैर पड़ के, नहीं तुम एक गाल पे मारो मैं दूसरे गाल आगे करूंगा, नहीं, दैट इज नॉट फॉरगिवनेस। हम ह्यूमन लेवल का नॉर्मल फॉरगिवनेस का बात कर रहे हैं। फॉरगिवनेस के भी 2 प्रकार है, एक सूडो फॉरगिवनेस और एक रियल फॉरगिवनेस। सूडो यानी अंदर से नहीं फील कर रहे, सिर्फ होठों से बोल रहे हैं या सिर्फ एक्सटर्नली कर रहे हैं। रियल फॉरगिवनेस इज वी चूज पीस ओवर बीइंग राइट। हम शांति, हैप्पीनेस एंड लव को प्रायोरिटी दे रहे हैं, खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ना कि सिर्फ मैं सही था वो गलत था। मान लो हम सही साबित भी करें, वो भी कभी कभी जरूरत है लॉजिकली, लेकिन क्या मैं हैप्पी हूँ, क्या मैं एट पीस हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फॉरगिवनेस का ये मतलब नहीं है कि दूसरा कुछ भी करे और हम सहते रहे, नहीं। फॉरगिवनेस का एक दूसरा डीपर मीनिंग है कि वो बर्ताव लोग कर रहे हैं या सिचुएशन कर रही है वो टॉलरेट नहीं करना, एक बाउंड्री सेट करना और खुद के टर्म्स पे और अच्छे वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के टर्म्स पे जीवन को आगे बढ़ाना। सो दैट इज द हायर डायमेंशन ऑफ फॉरगिवनेस। सो लेटिंग गो कैसे, जो एंगर बहुत साल से मैंने स्टोर किया है, हम वर्कशॉप में प्रैक्टिकली 1-1.5 घंटा सिर्फ इसमें लेते हैं, जो एंगर, फियर, गिल्ट, रिजेंटमेंट को रिलीज करते हैं। और बहुत बार वर्कशॉप में हमने देखा है, लाइव वर्कशॉप में,
कि लोगों के बहुत सालों की बीमारी, बहुत सालों का डिप्रेशन चला जा सकता है सिर्फ हमारी इमोशन को फ्लो होने दे, क्योंकि ये स्टक हुई होती है। सो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके कारण अपना डॉक्टर का बिल, इसका ये मतलब ये नहीं कि जो आप कोई क्रिटिकल थेरेपी ले रहे हो या ट्रीटमेंट ले रहे हो इसको छोड़ना है, बिल्कुल नहीं। है डिस्क्लेमर है कि हम थेरेपिस्ट या डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन ये चीजें साइड इफेक्ट नहीं करती और वैल्यू ऐड करती है। सो रिक्वेस्ट है, ट्राई करने में क्या जाता है, जस्ट लेट गो। जैसे हमने वो देखा 3 बार ब्रीथ करके ब्रीथ आउट कीजिए, उससे भी बहुत सारा निगेटिव टॉक्सिक फीलिंग या टॉक्सिक रिलेशन से हम छुटकारा पा सकते हैं। छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि लुइस है कि सबसे बड़ी बात मैंने अनुभव की, क्योंकि मैं 15 साल से इस फील्ड में हूँ और कई सालों से लाइसेंस ट्रेनर हूँ। मैंने खुद अनुभव किया कि मैं कुछ इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, लेकिन जब मैंने यू कैन हील का अनुभव किया पहले पार्टिसिपेंट और इसके फिलोसॉफी को फॉलो करने से, तो मुझे खुद को एक्सप्रेस करने में, स्पेशली निगेटिव इमोशन, जब हम निगेटिव लेबल देते हैं कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट अ गुड बॉय और गुड गर्ल, उसी फ्रेम से हम जीते हैं और हम खुद ही एक घुटन सी महसूस करते हैं। सो व्हाई लिव अ लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज व्हेन वी कैन लिव अ लाइफ ऑफ चॉइसेस एंड अबंडेंस। तो हम चूज कर सकते हैं, और अगर अच्छी तरीके से हम निगेटिव इमोशन रिलीज कर सकते हैं जिसके कारण खुद को और दूसरे को निगेटिव इम्पैक्ट ना हो, तो वो चॉइसेस हम ले सकते हैं। सो मेरा एक आपसे निवेदन या रिक्वेस्ट है कि जब भी आप उठते हैं और जब भी आप सोते हैं, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, जैसे पूनम जी ने भी बताया, कि जस्ट लुक एट द मिरर, आईने में देखिए आप। इट इज टफ, आई नो, इनिशियली बहुत बार हम आईने में देखते हैं लेकिन खुद से कनेक्ट नहीं होते। और घर में भी बताइए कि ऐसा एक्सरसाइज है, अगर आप पब्लिकली या ओपनली कर रहे हैं, सो दैट दे नो कि आपके दिमाग पे कुछ असर नहीं हुआ है, ये एक टेक्निक है। एंड इट हैज वर्कड वेल वंडर्स ग्लोबली। 72 कंट्रीज में सिंस 1980s लाखों लोग इसका अनुभव कर रहे हैं, एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई इट। इवन आपके पास समय नहीं तो इवन वाइल ब्रशिंग यू कैन से इन द माइंड, और 3 महीने में आपका एक कॉन्शियसनेस कुछ परसेंटेज से बहुत शिफ्ट हुआ होगा। आई लव माई सेल्फ आप बोल सकते हैं, आई एम विलिंग टू चेंज बोल सकते हैं, आई एम वर्दी, आई एम गुड इनफ, एंड यू कैन फील इट। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड निगेटिव भावनाएं फील करता है तो वो रियलिटी बन जाती है। फियर तो रियलिटी नहीं है, लेकिन हम महसूस करते हैं तो हमें रियल लगती है। ऐसे ही हम पॉजिटिवली इमेजिन करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो हमारी लाइफ और बेहतर हो सकती है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में, इन एसोसिएशन विथ Pink Mind and Heal Your Life, we are offering a wonderful workshop which is tried and tested. और उसके बारे में we'll just share in 2 minutes so that you will get to know कि, and then we will have some question and answers. Screen दिख रहा है सभी को? Is the screen visible? Yes. Yeah, thank you so much. So 2 days live ये एक वर्कशॉप है यू कैन हील का, जो स्टैंडर्डाइज वर्कशॉप है, जो खुद लुइस है ने डिजाइन किया है। और आप कहीं भी वर्ल्ड वाइड जाएंगे आपको सेम एक्सपीरियंस वर्ल्ड वाइड मिलेगा। एंड आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड ट्रेनर इन दिस, ओनली इंटरनेशनली सर्टिफाइड एंड लाइसेंस, every year we renew our license, they only can conduct this workshop, and it is called as transformational workshop. So ये 2 दिन का हम खास बम्बई में, मुंबई में ये वर्कशॉप ले रहे हैं इन दिस मंथ, 22 और 23 अप्रैल को, which created a massive shift in my personal life. जब मैंने पहली बार ये वर्कशॉप किया तो मुझे ऐसा लगा कि 15-20 किलो का मैं मेंटली बर्डन लेके घूम रहा था, और वो किसी ने ऐसे मान लो उठा दिया। एंड द थीम इज यू कैन हील योर लाइफ। हम ये अलग अलग टूल से कैसे खुद का लाइफ शिफ्ट कर सकते हैं। और ये पूरा वर्कशॉप एक्सपीरियंशियल है, इसमें पीपीटी ज्ञान नहीं है, इंफॉर्मेशन का ओवरलोड नहीं है। ये हम खुद महसूस करते हैं, जो हम सालों साल जो चीजें स्टोर की है उनको रिलीज करते हैं और नया स्टोरी, खुद का एम्पावरिंग स्टोरी क्रिएट करते हैं। सो 22-23 अप्रैल को
9 AM to 6 PM at Hotel Subha Galaxy, अंधेरी में है. And Pink Mind is really, I can say, adding value, because we just don't want to promote or sell this workshop. We really want these principles and philosophy to be part of everyone's life. So we have come up with a concrete plan of support system. 3 महीने का हम solution आपको support देंगे, जिसके कारण ये छोटी yet powerful चीजें, simple and profound चीजें हमारे personal and overall life में बदलाव ला सकती है. So Poonam ji, you would like to highlight what we are offering? So Poonam ji is also an experienced and expert counselor. She deals in various psychological critical cases as well. So you would like to share? Yes, so thank you so much for such a wonderful, informative, experiential session. हम पार्टिसिपेंट्स के साथ भी बात करेंगे, उनको ये कैसा लगा, उनके कुछ डाउट है, सवाल है अबाउट दिस वर्कशॉप. जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि आई हैव स्टार्टेड पिंक माइंड विद द एम कि इमोशनल वेलबींग मुझे बड़े पैमाने पे मासेस तक लेके जाना है. सो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और एक चीज जो मुझे समझ में आ रही है कि जितना हमें दवाइयों की जरूरत नहीं है, उतनी दवाइयां हम खाते हैं अपने लाइफ में. जितना स्ट्रेस हम डिजर्व नहीं करते हैं, उतना स्ट्रेस हम लेते हैं, और वो छोटी छोटी बातों से. और उसी वजह से यू कैन से कि मेरा ये मकसद है कि मानसिक स्वास्थ्य ये लोगों तक पहुंचना चाहिए. और जब हम इस वर्कशॉप की बात कर रहे थे, तो हमने मेरा खुद का एक्सपीरियंस है बीइंग एज अ ट्रेनर एज वेल एज अ काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट. आज मेरी मम्मी भी इस वर्कशॉप में, एंड शी विल एग्री ऑन दैट. वो मुझे बहुत साल से इसे बहुत गुस्सा करती है कि कितना लाखों में पैसा तू ट्रेनिंग में डालती है, करती क्या है ना, इतना क्यों पैसा डालती है, तो कमाएगी कब, छापेगी कब. सो दैट सॉर्ट ऑफ डांटी मुझे हमेशा मिलती रहती है. तो मुझे लगता है कि चेंज काफी स्लो प्रोसेस होती है. हम अपने को बिगाड़ने के लिए 30-40 साल लगा देते हैं, नॉट कॉन्शियसली बिगाड़ना. कभी एक्सटर्नल फैक्टर से हमारे ऊपर इम्पैक्ट होते हैं, कभी हमारी कुछ हमारी समझ तब कम होती है, इसकी वजह से हम जाने अनजाने में खुद की पर्सनालिटी या खुद के लाइफ के साथ कुछ गड़बड़ करते हैं. तो वो करने के लिए हम इतना टाइम लेते हैं या इतना टाइम जाता है. तो चेंज की प्रक्रिया जो भी होती है, नया बदलाव, वो भी स्लो एंड ग्रेजुअल होती है. ठीक है, ऐसा कोई जादू का छड़ी नहीं होता है कि एक दिन में किया घुमाया और हम चेंज हो गए. तो इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होता है. और मुझे खुद के लाइफ से ये लगा कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम मिलना बहुत जरूरी है. जैसे मैं अगर कुछ 2 दिन के वर्कशॉप करती थी, तो 2 महीना उसका अच्छा इफेक्ट होता था या 1 महीना होता था, और धीरे धीरे वापस अपनी जिंदगी में भागने लगो, वापस अपने पुराने पैटर्न फॉलो करना शुरू कर दो. तो उसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, एक सस्टेनेबल सपोर्ट होना जरूरी है. और इसलिए हम दोनों ने सोचा कि यू कैन हील का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि सिर्फ 2 दिन का वर्कशॉप, बट उसके अलावा हम कुछ वैल्यू एडेड सर्विस देंगे जो हमारी एक्सपर्टी है. तो जैसे यहाँ पे हम आफ्टर द वर्कशॉप 3 महीने के लिए हमारे ऐसे ग्रुप सेशंस होंगे, जहाँ पे विनय जी और अलग अलग टूल्स और मेथड हमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे उस ग्रुप सेशंस में, जो जूम पे होंगे, ऑनलाइन होंगे, वंस इन अ मंथ. जहां हम बात भी करेंगे कि हमारी जर्नी कैसे जा रही है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और कौन सी नई और प्रैक्टिसेस करके हम हमारे चेंजेस सस्टेन कर सकते हैं. उसके अलावा हर कोई ग्रुप में बात करने के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है, और हर किसी की जर्नी अलग होती है. तो उसके अलावा हम महीने में एक इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशन, ऐसे 3 काउंसलिंग सेशन नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए ऑफर करेंगे. तो अगर आप पूरा स्ट्रक्चर देखोगे, तो इस वर्कशॉप की फीस हमने 15,000 रखी है. अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो है, अगर आप 10 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करते हो, तो 13,000 में यही वर्कशॉप आपको मिलेगा. बट ऐसे देखा जाए तो जो बातें मैंने अभी कही, तो ये वर्कशॉप के फीस के अलावा अराउंड 8 to 10,000 की जो चीजें हैं, उनकी कॉस्ट अगर हम करते हैं, तो वो हम कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू एडेड सर्विसेज करके इसमें यहाँ पे ऐड कर रहे हैं. क्योंकि हमारा मकसद एक ही है कि लोग अपने बदलाव को सस्टेन कर पाए. तो we will be happy if you are interested. You can get in touch with us for the more details. If you have any concern, any challenges, you want to make it but
If you see some difficulty, please feel free, call us and talk to us. So this is all about today's session and offering of the workshop. अभी मैं चाहूंगी कि आपको ये सेशन कैसा लगा, if you would like to share about that, या आपके मन में कोई सवाल है, आपने कुछ चीज सुनी और आपको लगा नहीं नहीं ये ऐसा नहीं होता या ऐसा क्यों होता है, अगर कुछ सवाल है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो. I guess Manjula Nair ji has some question. Yes, madam, you can unmute and ask your question. Yeah, Manjula ji. You'd like to share or ask, please feel free. Yeah. Feel free to write your experience of this session in chat box, your question, your doubt in the chat box. We are happy to give explanation or discuss more on that. Yeah, thank you, Manjula ji. I'm glad you liked it. और एक आप सबको सजेशन है कि आप YouTube में You Can Heal Your Life मूवी करके सर्च कर सकते हैं. There is a wonderful movie professionally shooted and created by Heal Your Life. So हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है. You Can, उसमें लुइस का खुद का भी वीडियो है और at the same time it is a wonderful theme of how a life is transformed. It's a wonderful documentary come movie. So you can definitely avail that. And I would also suggest you can read the book, You Can Heal Your Life. It's available in almost 23 languages with the same name. Any question, any comment, we would appreciate. Thank you for your wonderful response for this workshop. You made it even with IPL and so many 31st March के बाद का commitments. You really made it here. Grateful to each one of you for showing up. Luis, I would say showing up is the best thing we can do. So many times we hide ourselves. So we also request you to, if possible, show up in the workshop and give yourself a gift of self-love. Or you would like to recommend to anybody, and we will be having further similar Zoom workshop. So please share it with others, your friends and family members. They can also be benefited with this. So any question, or we will conclude this? Yeah, you are on mute, Poonam ji. Yeah. Yeah. So I think we'll conclude. Yes. So thank you so much for everyone for your participation and being attentive in workshop. Looking forward to see you in today's journey of healing ourselves and loving ourselves. Take care and good night. Yeah, thank you so much. Good night. Yeah.